Good evening, everyone. Myself, Dr. Pradyot, Director of Movement Maestro Academy. Welcome you all to our third e-seminar on role of chest physiotherapy in COVID-19. For today's session, I glad to invite our renowned resource person, Dr. Punit Chube sir, who is Director of Divine Touch Physiotherapy Center, Lucknow, and mentor of Movement Maestro Academy. Over to you, sir. Thank you, sir. Thanks for inviting me for the seminar. And I'm Dr. Puneet Chaube, ex-physiotherapist of Max Hospital, Saket, New Delhi. I'm Masters in Cardiopulmonary. And today I'm just going to cover the webinar on the topic, the role of chest physiotherapy in COVID-19 patients. Thank you, sir. Thanks for inviting. And without wasting your time, we will start the slide. Okay, we are starting our topic, that is role of chest physiotherapy in COVID-19 patient. As you all know, this is one of the most advanced and one of the most important topic nowadays to cover the chest physiotherapy in COVID-19 patient. This is Dr. Puneet Chaube, as I had already told you, the Director of Divine Touch Physiotherapy Center. For the introduction part, that is COVID-19 patients can develop a severe disease that can lead to hypoxic respiratory failure. जब भी COVID-19 होगा तो चेस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत इसीलिए पड़ती है. That's why the chest physiotherapy is required because there is hypoxic respiratory failure and acute respiratory distress syndrome. This is very important to know that what happens when the patient is suffering from the COVID-19 disease. सीवियर पेशेंट्स कैन रिक्वायर एसएस टू इंटेंसिव केयर यूनिट. जो ज्यादा सीरियस पेशेंट हैं उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है. अर्ली रिहेबिलिटेशन इज नोन टू बी इफेक्टिव क्रिटिकली इन पेशेंट्स एंड एआरडीएस. अगर किसी पेशेंट को एआरडीएस हो रखा है या फिर क्रिटिकली इल है तो उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. ठीक है. Now respiratory physiotherapy consists of early mobilization. जो हम respiratory physiotherapy करते हैं उसमें early mobilization जरूरी है. That is passive and active mobilization, muscle strengthening exercises, mobilization out of bed, standing, walking, and aerial. These all covers into the early mobilization, and it is the part of physiotherapy. Patient positioning is also very important to prevent the patient from different complications that can be pressure sore, bed sore. ये सारी जो problems है, stiffness जो हो रही है patient को उससे बचाने के लिए we can do the patient positioning. Non-invasive mechanical ventilation, that is CPAP, is also commonly used nowadays. Tracheostomy management, generally the serious patient is shifted to the tracheostomy, and after that it is very necessary to manage the tracheostomy. After tracheostomy, the management is very required by physiotherapist. इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, विनिंग, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट है उनकी विनिंग ऑफ भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम है. एयरवे क्लियरेंस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट and oxygen titration. Next, rehabilitation of severe COVID-19 patient. Severe COVID-19 patients, the illness may be complicated by respiratory failure and other forms of multi-organ failure. जो patient हमारे serious हैं, उनमें केवल respiratory की problem नहीं होती है. There can be multiple organ failure. The different organ can be affected, and that's why we see n number of death in case of COVID-19 patient. रिजल्टिंग इन आईसीयू एडमिशन. ज्यादातर पेशेंट को आईसीयू के एडमिशन की जरूरत पड़ती है जो सीरियस पेशेंट है विद लाइकली इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन. रिहैबिलिटेशन नीड्स आर टिपिकली रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट and prolonged immobilization. That's why, as a good physiotherapist, I will always suggest to mobilize the patient as early as possible. Rehabilitation along the continuum of care in COVID-19, हम 3 पार्ट में पेशेंट को डिवाइड करते हैं. फर्स्ट फेज एक्यूट फेज, देन पोस्ट एक्यूट फेज और लॉन्ग टर्म जो फेज है उसमें हम डिवाइड करते हैं. तीनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं एंड इनपुट अलग अलग है. इन एक्यूट फेज द पेशेंट कैन बी admitted to the ICU or SDU setting, and treatment will be done in the hospital. Post acute phase, the treatment can also be done into the ward,
and long term cases we can manage the patient into the home isolation cases. Next, rehabilitation for severe COVID-19 patient, जो ज्यादा पेशेंट सीरियस हैं उनके लिए impairment most likely to encounter physical disconditioning and muscle weakness, fatigue, impaired lung function, delirium and other cognitive impairments, impaired swallow and communication, mental health disorder. Yes, this is also one of the most important part, because when the patient is suffering from the COVID-19, they suffer a lot of mental health disorders, psychological problems are there. So the patient is needed to be psychological support. जो पेशेंट अगर कोविड-19 से सफर्ड है, उनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वी कैन गिव द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और उनकी फैमिली को भी हमें डिस्टर्ब करना चाहिए कि टेंशन लेने की बात नहीं है, पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इज द की. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक फिजियोथेरेपिस्ट अकेले किसी कोविड-19 के पेशेंट को डील नहीं कर सकता है, उसको ठीक नहीं कर सकता है. उसके लिए हमें पूरी एक टीम की जरूरत पड़ती है, जिसमें डिफरेंट टीम के मेंबर्स हैं, उनकी हमें जरूरत पड़ती है. Still, many unknowns related to the pathology of COVID-19 and the long-term complications are there. That is, many organs can be affected. सर मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम. Okay, now the most important part of today's webinar, that is physiotherapy management of COVID-19 patient. Post-COVID जो patient है उनमें हम क्या क्या करेंगे? That is bronchial hygiene technique, one of the most important technique. Then breathing retraining technique we use, relaxation technique. This is also very important and it plays a good role in post-COVID patient. Breathing control, we will educate the patient how to control the breathing. Exercise training, we will do the exercise training of the patient, and energy conversation. I will give the details of these all techniques. So moving on, the bronchial hygiene technique. Nebulized medications, particularly the bronchodilators, are quite effective in the treatment of both acute and chronic phases of COVID patients. जो भी पेशेंट एक्यूट फेज में है या फिर क्रॉनिक फेज में है, उनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए बोलते हैं, या फिजिशियंस जो हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए बोलते हैं. बिकॉज ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होता है कि जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो खुल जाता है और पेशेंट को ब्रीदिंग में इजी होगा और उनका जो सैचुरेशन लेवल है वो इंक्रीज करेगा. बाय गिविंग द ब्रोंकोडायलेटर्स and increase in IC, that is inspiratory capacity after bronchodilators administration, implies reduction in DS, that is dynamic hyperinflation, which is the main cause of reduced exercise capacity and dyspnea. जो हमको bronchodilators देने से हमारे lungs की capacity, lungs open हो जाते हैं और हमारी exercise capacity उससे बढ़ सकती है. नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट का मेथड है वो है सक्सनिंग. सक्सनिंग हम बहुत ज्यादा कॉमन यूज करते हैं. वी यूज सक्सनिंग इन अवर डे टू डे लाइफ. हमको ज्यादातर सुनने को मिलता है कि जो भी आईसीयू में पेशेंट है या प्रोलॉन्ग एडमिटेड पेशेंट है, उनको हम सक्सनिंग कर रहे हैं या सक्शन की जरूरत है. तो सक्सनिंग होता क्या है? सक्सनिंग इज द मैकेनिकल एस्पिरेशन ऑफ पल्मोनरी सिक्रेशन फ्रॉम पेशेंट विद एन आर्टिफिशियल एयरवे इन प्लेस. हम एक आर्टिफिशियल एयरवे लगाते हैं और जो सिक्रेशंस हैं हमारे लंग्स के अंदर में, जो सिक्रेशंस हैं, वी ट्राई टू पुल इट आउट. जो पेरिफेरी हमारा लंग्स है, पेरिफेरी में जो हमारे सिक्रेशंस हैं, लंग्स का जो पेरिफेरी पार्ट है, उससे हम सेंट्रल पार्ट की तरफ सिक्रेशंस को सक करते हैं बाय ए नेगेटिव प्रेशर. एक नेगेटिव हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड बाय दैट प्रेशर वी ट्राई टू क्लियर द सिक्रेशंस व्हिच इज देयर इन द लोअर लोब्स और पेरिफेरी एयरवेज. इंडिकेशंस, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर सक्सनिंग? इनएबिलिटी टू कफ इफेक्टिवली. अगर कोई पेशेंट अपने आप से कफिंग नहीं कर पा रहा है, उसको निकाल नहीं पा रहा, तो सक्सनिंग इज रिक्वायर्ड. स्पुटम प्लगिंग अगर कहीं तो स्पुटम प्लगिंग हो रखा है, देन वी विल गो फॉर द सक्सनिंग टू असेस द ट्यूब पेटेंसी. हमको ट्यूब के क्लियरेंस के लिए भी सक्सनिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सक्सनिंग? सक्सनिंग तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सुनने में आता है कि सक्सनिंग करने, लेकिन कौन से ऐसे जगह है जहां पे हमको सक्सनिंग नहीं करना. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? द कॉन्ट्राइंडिकेशंस विल इंक्लूड फ्रैंक हेमोप्टिस, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म. अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म हो रखा है, देन वी विल नॉट अलाउ टू गो फॉर द सक्सनिंग बिकॉज इट विल इंक्रीज द ब्रोंकोस्पाज्म. अनड्रेन्ड न्यूमोथोरैक्स, अगर न्यूमोथोरैक्स हो रखा है और वो अनड्रेन्ड है तो भी हमको सक्सनिंग नहीं करना चाहिए, उससे फिर वो प्रॉब्लम में पेशेंट आ जाएगा.
कॉम्प्रोमाइज्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर किसी पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका ठीक नहीं है, उसको कार्डियो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, देन वी कैन अवॉइड द सक्शनिंग। लेकिन हम लोग जो हैं या कोई एक्सपर्ट हैं तो हम सिम्टम्स को देख करके वी कैन गो फॉर द सक्शनिंग, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है, बिकॉज हमारा गोल ये होना चाहिए कि पेशेंट को हमें अच्छा करना है, उसको खराब नहीं करना है। Next thing is, what is the precautions we should take during the suctioning? The suction catheter used must be less than the half of the diameter of endotracheal tube. जो endotracheal tube है या जिससे हम suctioning के लिए डाल रहे हैं, nasal tube से डाल रहे हैं या फिर oral हम डाल रहे हैं, तो उसका जो suction catheter का diameter है, that is very important. We have to select the suction catheter which should be half the diameter of the endotracheal tube. हम अगर जो सक्शन कैथेटर है उसको डायमीटर को अगर कम ले लेंगे चलेगा, ज्यादा लेने से वी कैन डू द इंजरी टू द पेशेंट, टू द एंडोट्रेकियल ट्यूब हम इंजरी कर सकते हैं। द वैक्यूम प्रेशर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, जितना हम कम प्रेशर रखेंगे उतना अच्छा है। दैट मे बी बिटवीन 60 to 150 mm of Hg। सक्शन नेवर बी रूटीन, ओनली व्हेन देयर इज एन इरिटेशन। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें सक्शन ऐसा नहीं है कि सुबह दोपहर शाम हम लेकर के पेशेंट को सक्शनिंग करते जा रहे हैं। जहां पे जरूरत हो, जब जरूरत हो और जितने इंडिकेशन हो, देन ओनली वी हैव टू गो फॉर द सक्शनिंग। हैजार्ड्स ऑफ सक्शनिंग, सक्शनिंग के हैजार्ड क्या हो सकते हैं? म्यूकोजल ट्रॉमा, जाके जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि म्यूकोजल हम ट्रॉमा दे सकते हैं पेशेंट को, तो इससे हमें बचना चाहिए। कार्डियक एरिथमियाज हो सकता है पेशेंट को, हाइपोक्सिया हो सकता है, पेशेंट का सैचुरेशन कम हो सकता है, उसको लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन हो सकता है अगर हम सक्शनिंग ज्यादा करेंगे तो। सक्शनिंग ज्यादा नहीं करेंगे, प्रिकॉशन के साथ अगर नहीं करेंगे तो। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर सक्शनिंग से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ में आएंगे तो आप सक्शनिंग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये डायग्राम जो स्लाइड है इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ट्रैक्टोस्टमी सक्शन है। एक पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, इसके ट्रैक्टोस्टमी लगी हुई है और हम सक्शन कैथेटर डाल करके इसमें यहाँ से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और सक्शन से जो भी सिक्रेशंस अंदर में इकट्ठा हो रखा है उनको हम बाहर की तरफ निकालते हैं। दूसरा ये पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए नेजर एंड ओरल सक्शनिंग कर रहे हैं, हम ओरल सक्शनिंग भी करते हैं। ये तो ट्रैकेस्टमी तो बाद की चीज, अगर किसी पेशेंट को ट्रैकेस्टमी हुई है, नहीं भी हुई है तो हम ओरल सक्शनिंग कर सकते हैं या नेजल सक्शनिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता था नेजल सक्शनिंग जब मैं आईसीयू में काम करता था, तो लेकिन इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से सक्शनिंग करने की जरूरत होती है। तीसरा है इंडोट्रेकियल सक्शन, जिसमें एक ये ट्रैकेस्टमी ट्यूब के साथ में लगा रहता है, इसको हम क्लोज्ड सक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें हम कैथेटर बाहर की तरफ नहीं निकालते हैं। एक नेगेटिव प्रेशर के साथ वी ट्राई टू पुल इट आउट एंड डू द सक्शनिंग इन इंडोट्रेकियल सक्शन। ये रही बात सक्शनिंग की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम फिजियोथेरेपी की जहां तक बात करते हैं पोस्ट कोविड पेशेंट में या ऐसे भी आईसीयू के जो भी पेशेंट है, व्हेन वी सी द पेशेंट इन आईसीयू और वी सी द पेशेंट ऑन बेड रिडन हु आर ऑन बेड रिडन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो पोस्चरल ड्रेनेज की एक टेक्निक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इफेक्टिव है। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से हम जो पेरिफेरी में सिक्रीशंस इकट्ठा हैं उनको हम आराम से सेंट्रल एयरवे की तरफ लेकर के आ सकते हैं और बाद में उसको सक इट आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज पोस्टल ड्रेनेज? इट इज अ पैसिव टेक्निक इन विच द पेशेंट इज प्लेस्ड इन पोजिशंस दैट अलाउ द ब्रोंकोपल्मोनरी टू बी ड्रेन्ड विद द असिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के असिस्टेंस से हम उसको क्लियर कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये डायग्राम में आपको डिफरेंट पोजिशनिंग दिख जाएगी पोस्टल ड्रेनेज की, कि अपर लोब के लिए हमें एंटीरियर सेगमेंट में कैसी पोजिशनिंग करनी चाहिए। अपर लोब का पाइकल अगर सेगमेंट अफेक्टेड है तो उसके लिए हम ये पोजिशन पोस्टल ड्रेनेज की यूज करेंगे। ये राइट मिडिल लोब के लिए है। उसी तरीके से अलग अलग जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग लोब्स हैं हमारे लंग्स के, उसके लिए हमें डिफरेंट पोजिशनिंग करनी चाहिए कि हमें किस किस पोजीशन में पोस्टल ड्रेनेज करके विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हम कैसे सिक्रेशंस को सेंट्रल एयरवे की तरफ पुल कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज और बाद में आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशन है, इसमें हम पिलो का यूज करते हैं या फिर ये टिल्ट टेबल भी यूज कर रहे हैं। जो अच्छे सेटअप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हम टिल्ट टेबल या हमारे पास काउचेस इस तरीके के होते हैं
जिसमें पेशेंट की पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं, बट ट्राई टू डू द चेंज इन पोजिशन एवरी 2 आवर्ली ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट आईसीयू में नहीं भी है तो भी हम बेड रिडन है तो उसमें अगर हम पोजिशन को चेंज करेंगे then we can prevent different complications other than respiratory complications। हम बेड सोर से भी पेशेंट को बचा सकते हैं अगर हम पोजिशन की चेंजिंग करते रहेंगे तो। नेक्स्ट इज परकशन। ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और लोग सही भी तरीके से यूज कर रहे हैं एंड देयर इज माल प्रैक्टिसिंग ऑफ परकशन इज आल्सो देयर। मैं देख रहा हूँ लोग गलत तरीके से परकशन कर रहे हैं जिससे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। परकशन क्या होता है? परकशन ए रिदमिक फोर्स दैट इज अप्लाइड विद द कर्व्ड हैंड्स टू द पेशेंट थोरैक्स ओवर द इन्वॉल्व्ड सेगमेंट्स। ये पेशेंट है उनके जो इन्वॉल्व सेगमेंट्स है वहां पे हम एक कर्व्ड हैंड से रिदमिकल फोर्स के थ्रू परकशन करते हैं एंड ट्राई टू जनरेट ए प्रेशर बिलो द thoracic cage and disclose the dissolve the secretions को हम डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय रिदमिक परकशन। वाइब्रेशन बहुत अच्छा टेक्निक है। वी कैन यूज द वाइब्रेटर आल्सो एंड वी कैन यूज द मैनुअल वाइब्रेशन। Vibration is a sustained co-contraction of the upper extremities of a caregiver to produce a vibratory force that is transmitted to the thorax over the involved lung segment। हम vibrations देते हैं अपने हाथों से, मैनुअल वाइब्रेटर जिसको बोलते हैं, मैनुअल वाइब्रेशन देते हैं और इसका भी द गोल ऑफ वाइब्रेशन इज आल्सो टू promote the secretion from the periphery to the central airway ताकि हम सिक्रेशंस को डिस्क्लोज कर सकें और उसको बाहर निकाल सके। वाइब्रेटर भी हम यूज कर सकते हैं, कई सेटअप्स में हम वाइब्रेटर यूज करते हैं या फिर वी कैन यूज द मैनुअल वाइब्रेटर, मैनुअल वाइब्रेशंस। पोस्ट पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर, ये नेक्स्ट टेक्निक है। पीप क्रिएट्स अ बैक प्रेशर टू द स्टंट द एयरवे ओपनिंग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन and promotes collateral ventilation, allowing pressure to build up distal to the obstruction. This method of airway clearance prevents collapse of the airways, which eases the mobilization of secretion from the periphery towards the central airway। इस तरीके से पीप हमारे हम यूज करते हैं। पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर एक पीप डिवाइस होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं एयरवे क्लियरेंस के लिए। बड़े सेटअप में यूज होता है। फ्लटर डिवाइस का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ व्हाट इज फ्लटर डिवाइस। द फ्लटर कंबाइंस पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर थेरेपी विद हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन within the airway। It is a controlled vibration system which produces positive expiratory pressure and cyclic oscillation of the airways during exhalation। Exhalation through the flutter results oscillations of the expiratory pressure and airflow which vibrate the airway walls। इसमें एक प्रेशर आता है जिसकी वजह से हम वाइब्रेशंस आते हैं जो एक एक्सपिरेटरी प्रेशर क्रिएट करता है। डिक्रीज द कोलेजिबिलिटी ऑफ द एयरवेज एंड एक्सीलरेट एयर फ्लो फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ म्यूकस अप द एयरवे एंड इंप्रूविंग लंग फंक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसका काम है। इस तरीके का एक ये फ्लटर डिवाइस है जो कि एक वाइब्रेटरी मूवमेंट क्रिएट करता है और एक्सपिरेशन को हेल्प करता है। ये हमारा फ्लटर डिवाइस है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं इन द एक्टिव पेशेंट्स जो हमारे एक्टिव पेशेंट्स है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी सुनने वालों को, जो लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। द फिजियोथेरेपी which we do by the chest physiotherapy in ICU or in the hospital, that can be divided into two parts। One is passive chest physiotherapy which is done by the physiotherapist and one is active physiotherapy which is done by the patient। अगर पेशेंट हमारा एक्टिव है, वो अपने आप से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के तैयार है, उसको इतनी कैपेसिटी है कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमें हमेशा पेशेंट को प्रमोट करना चाहिए कि गो फॉर द एक्टिव फिजियोथेरेपी, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक जो कि एसीबीटी हम बोलते हैं, एसीबीटी उसको कराना चाहिए। अगर हमारा पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्टिव फिजियोथेरेपी करा पाए, देन वी विल गो फॉर द पैसिव फिजियोथेरेपी। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, वेंटिलेटर पे, तभी हमें पैसिव फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। हाँ, अगर हम बात करें वाइब्रेटर की और परकशन की, वी कैन यूज वाइब्रेटर एंड परकशन इन बोथ द टेक्निक्स, इन पैसिव टेक्निक इन एज वेल एज इन एक्टिव टेक्निक। एपिकेला डिवाइस, ये बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अभी एज ए चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको ये बताऊं कि एपिकेला डिवाइस भी अभी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। लोग एडवांस जो चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे हैं इसमें एपिकेला डिवाइस का यूज करते हैं।
इसका भी काम सेम होता है। और इसके लिए भी हमारा मेन एम यही है कि हमें सिक्रेशंस को बाहर निकालना है, टू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी, टू रिमूव द सिक्रेशंस एंड टू मेक द लंग्स हेल्दी। इसके अलावा कॉमनली वी यूज द रेस्पिरोमीटर, दैट इज रेस्पिरोमीटर, हमारा एक 3 बॉल का डिवाइस आता है, उसको भी हम यूज करते हैं, जो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली अवेलेबल भी है मार्केट में, या मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं for the improvement of respiratory muscles as well as the expiratory muscles, and that also promotes the healing, and it also removes the secretion from the lower part of the lungs. अब हम बात कर रहे हैं बार बार सिक्रेशन को रिमूवल की, तो ये बेसिकली है क्या और कफिंग हमारा कैसे होता है, ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे हमारे आज वेबिनार में जिनको ये पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। कफिंग, देयर आर 4 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द इफेक्टिव कफिंग। देयर आर डिफरेंट 4 स्टेजेस। स्टेज 1 दैट इज एडिक्वेट इंस्पिरेशन। स्टेज 2 क्लोजिंग ऑफ ग्लोटिस, जो हमारा ग्लोटिस है उसको हम क्लोज करते हैं। स्टेज 3 एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, एंड स्टेज 4 ओपनिंग ऑफ द ग्लोटिस एंड एक्सपल्सन। ये 4 स्टेज में हमारा कफिंग होता है। पहले एडिक्वेट इंस्पिरेशन, हम लंबी सांस लेते हैं, तो ग्लोटिस को बंद करते हैं और हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक पॉजिटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्रिएट करती है, फिर हम ग्लोटिस ओपन करते हैं और एक्सपल्सन करते हैं और वो बाहर हम कफ को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें भी एक्टिव कफिंग एंड पैसिव कफिंग है। वी कैन गो फॉर द पैसिव कफिंग बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम स्टिमुलेट करते हैं उस केस में। ये देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, देयर इज इरिटेशन, देन वी विल गो फॉर द इंस्पिरेशन, देन कंप्रेशन। ये हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स है इनसे ये प्रेशर लग रहा है और ओपनिंग हो करके एक्सपल्सन। वी कैन गो फॉर द कफिंग आउट ऑफ द सिक्रीशन। जहां तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द एफईटी, that is forced expiration technique. This comprises teaching the patient to perform 1 or 2 huffs followed by relaxed controlled breathing. The secretion thus mobilized are then cleared with 1 or 2 puff. Basically patient को हफिंग के लिए हम बोलेंगे। कफिंग जो होता है वो ओपन ग्लोटिस से होता है, हफिंग जो होता है वो क्लोज ग्लोटिस से होता है। तो हफिंग करने के बाद भी हम सिक्रीशंस को निकाल सकते हैं, जिसको हम फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक बोलते हैं। ब्रीदिंग रिट्रेनिंग, हमें वी आर गोइंग टू रिट्रेन द ब्रीदिंग विच इंक्लूड्स द डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये एसीबीटी का एक पार्ट है जिसमें हम डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग करते हैं। पेशेंट को डायफ्राम से स्टिमुलेट करके और ब्रीदिंग को हम प्रमोट करते हैं, विच इज नोन एज डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वी कैन प्लेस 1 hand on the diaphragm and ask the patient to inhale and try to inhale the air and to the part where we have placed the hand, and at the expiration phase we try to give a slight force on expiration when the patient is expirating out the air outways. हम पेशेंट को बोलेंगे एक लंबी सांस लीजिए, अपने हाथ को डायफ्राम पे रखेंगे, या एक्टिव पेशेंट है तो उसको बोलेंगे आप डायफ्राम पे अपने दोनों हाथों को रख लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से, और जब पेशेंट सांस को बाहर छोड़ेगा तो एक्सपिरेशन के फेज में जहां पे लास्ट एक्सपिरेशन होगा वहां पे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेशर देंगे। इसको ब्रीदिंग डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। और आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा रोल है हमें लंग्स को हेल्दी करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पर्स लिप ब्रीदिंग। अभी मेरे कुछ वीडियोस थे उसमें मैंने ये बताया था पर्स लिप ब्रीदिंग का इंपॉर्टेंस। पर्स लिप ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी, टू रिमूव द CO2। जो हमारे लंग्स में हमारे CO2 भर जाता है तो उसको हम ब्रीद आउट करते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग से। पर्स लिप ब्रीदिंग में हमें एक ओवल शेप बनाना होता है माउथ का, और लंबी गहरी सांस नाक से लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। ट्राई टू डू द एक्सपिरेशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपिरेशन करेंगे उतना अच्छा है। एक लंबा इंस्पिरेशन किया और उसके बाद मुंह से हमको गहरी सांस छोड़ना है। ट्राई टू जो हमारा ड्यूरेशन है एक्सपिरेशन का वो हमारा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और लंबा होना चाहिए।
इसको हम पर्सनल ब्रीदिंग बोलते हैं। वी कैन डू इट बाय टिश्यू पेपर और ए पीस ऑफ पेपर से भी हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है रिलैक्सेशन टेक्निक की। यस, व्हाट इज रिलैक्सेशन टेक्निक एंड व्हाई इट प्लेज ए वेरी बिग रोल इन कोविड-19 पेशेंट। जो हमारे कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, जो आईसीयू में उनको तो पैसिव फिजियोथेरेपी कर दी, फिर एक्टिव फिजियोथेरेपी कर दी। अब रिलैक्सेशन टेक्निक की बात आती है कि हम भाई जो पेशेंट है उनको रिलैक्सेशन कैसे दें और उनकी ब्रीदिंग को कैसे रिलैक्स करें। तो वी कैन डू इट विद रिलैक्सेशन सिटिंग, रिलैक्स सिटिंग, फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग। ये डिफरेंट पोस्चर्स हैं हमारे रिलैक्सेशन के। रिलैक्स स्टैंडिंग, फॉरवर्ड लीन सिटिंग। ब्रेथलेस चिल्ड्रन में प्रेफर ए लीनिंग पोजिशन। जो हमारे ब्रेथलेस पेशेंट हैं जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उनको हम लीनिंग पोजिशन भी बोल सकते हैं करने के लिए। ये देखिए, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज रिलैक्स सिटिंग। हम किस तरीके से रिलैक्स सिटिंग कर रहे हैं। वी आर सिटिंग ऑन द चेयर और थोड़ा सा आगे की तरफ ये साहब आगे की तरफ झुके हुए हैं, जिससे उनका लंग्स जो है वो रिलैक्स हो रखा है। इसको हम रिलैक्स सिटिंग बोलते हैं। रिलैक्स स्टैंडिंग, एक पार्ट हमने अपनी बॉडी का रिलैक्स कर रखा है, वॉल की तरफ साइड में रिलैक्स स्टैंडिंग किया इन्होंने, या फिर ये पीछे की तरफ रिलैक्सेशन किया है। फॉरवर्ड लीनिंग पोजिशन जो हम चिल्ड्रंस के लिए बोल रहे थे, वी कैन प्लेस दिस काइंड ऑफ प्लेस एंड we can go for forward leaning position. Forward standing, yes, we can stand like this. इस पोजीशन में हमारा डायफ्राम भी रिलैक्स करेगा, या फॉरवर्ड लीन पोजीशन इस तरीके से हम आगे की तरफ झुके रहेंगे तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, लंग्स को ओपन होने का स्पेस मिलेगा। वी कैन गो फॉर द इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। इससे पेशेंट का ब्रीदिंग कंट्रोल होगा, उनका हार्ट रेट ठीक रहेगा और पल्स रेट भी ठीक रहेगा और सैचुरेशन जो है वो बढ़ेगा। Now we are going to talk about the breathing control. Breathing control is a normal tidal breathing using the lower chest with relaxation of the upper chest and shoulder. जो हमारा अपर चेस्ट है, यहाँ पे देखिए बात आ गई शोल्डर की। यस, शोल्डर की जो हमारी मसल्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल करती हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उनका भी बहुत बड़ा रोल है शोल्डर की मसल्स में। अगर आपको नहीं पता होगा तो स्टडी करिएगा, जो हमारे फिजियोज हैं आपको पता चलेगा कि हमारे शोल्डर के मसल्स आल्सो प्लेज अ बिग रोल इन द रेस्पिरेशन। टू बी टॉप ब्रीदिंग कंट्रोल, द पेशेंट शुड बी इन ए कंफर्टेबल वेल सपोर्टेड पोजीशन। इस तरीके से हमारा पोजीशन होनी चाहिए। ब्रीदिंग कंट्रोल इन सिटिंग, किस तरीके से बैठना है। फॉरवर्ड स्टेपिंग, जब स्टेयर क्लाइंबिंग करेंगे तो किस तरीके से हमको स्टेयर क्लाइंबिंग करना चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। ब्रीदिंग कंट्रोल इन हाई साइड पोजीशन में हमें कैसे करना है। वी हैव टू टीच ऑल दीज थिंग्स टू द पेशेंट। हमको ये सारी चीजें पेशेंट को सिखानी है। पेशेंट को कुछ नहीं पता है, हमें एजुकेट करना है पेशेंट को। नेक्स्ट थिंग इज पोस्चरल अवेयरनेस। पोस्चरल का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्चर के बारे में हमें जानना चाहिए, देखना चाहिए कि पोस्चर कैसे होना चाहिए। राउंडेड शोल्डर्स, थोरेसिक काइफोसिस एंड हेड थ्रस्ट फॉरवर्ड आर कॉमन पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज। जो हमारे राउंडेड शोल्डर है, इसलिए मैं बता रहा था कि शोल्डर का बहुत बड़ा रोल है हमारा ब्रीदिंग में। या थोरेसिक काइफोसिस अगर किसी को हो रखा है तो उसका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी इनको, और जो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। पेशेंट को काइफोसिस है, स्कोलियोसिस हो रखा है थोरेसिक एरिया में, तो इनको काइफोसिस और ये सारी चीजों की प्रॉब्लम होती है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर अगर किसी को है उसको भी ये प्रॉब्लम एबनॉर्मलिटीज है। दीज आर पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज, और इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हियर कम्स इज दैट फिजियोथेरेपिस्ट अपने तरफ से पेशेंट को अवेयर करे कि हाँ भाई आपका पोस्चर ये गड़बड़ है, आपको पोस्चर ठीक करने की जरूरत है। फ्री एक्टिव एक्सरसाइजेज एग्जांपल, हम फ्री एक्टिव एक्सरसाइजेज के लिए पेशेंट को बोलेंगे। सिटिंग में ट्रंक टर्निंग विद आर्म रिलैक्स, हम पेशेंट को सिटिंग में एक्सरसाइजेज बोल सकते हैं कि आप अपने ट्रंक को इधर घुमाइए, थोड़ा सा आर्म की एक्सरसाइजेज करिए। ट्रंक बेंडिंग फॉरवर्ड और साइडवेज हम एक्सरसाइजेज के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को। दीज आर एक्टिव एक्सरसाइजेज एंड आई नो ऑल फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी हैं सबको ये पता है कि हाँ क्या एक्टिव एक्सरसाइजेज हम करा सकते हैं शोल्डर की या फिर आर्म की फॉर पेशेंट्स। आप एक्सरसाइजेज कराइए। सिटिंग में एल्बो सर्कलिंग बैकवर्ड से सारी एक्सरसाइजेज हम करा सकते हैं। सिटिंग में शोल्डर गर्डर सर्कलिंग बैकवर्ड और फ्रंट, ये हम एक्सरसाइजेज पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप शोल्डर की एक्सरसाइजेज करिए। इसके साथ साथ एक चीज अभी पीछे की स्लाइड में नहीं थी, वो मैं अभी वर्बली आपको बता दे रहा हूँ कि वी कैन आस्क द पेशेंट टू गो फॉर थोरेसिक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विच कम्स अंडर द एसीबीटी के टेक्निक्स में आता है, एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक में। थोरेसिक एक्सपेंशन के लिए दोनों हाथों को पेशेंट को ऐसे बोलना है, पकड़ के रखने के लिए ऊपर हाथों को उठाएंगे
लंबी गहरी सांस नाक से लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे, उसके साथ साथ अपने हाथों को नीचे करेंगे। ये एक थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज है, इसमें साइड वेज में भी हम कर सकते हैं। ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है टू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी, टू प्रमोट द हीलिंग, टू रिमूव द सिक्रेशंस एंड फॉर द हेल्दी लंग्स। सिटिंग में आर्म रेजिंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ये सभी को पता है। सिटिंग में ट्रंक बेंडिंग फॉरवर्ड एंड ब्रीदिंग आउट एंड ट्रंक रेजिंग विद ब्रीदिंग इन। सिटिंग में शोल्डर गर्डेड रिट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन एक्सरसाइजेस। फुट लाइनिंग, नी रोलिंग साइड टू साइड, ये सब आपको पता है कि हमें क्या एक्सरसाइज करानी है। Exercise training is also one of the most important thing. These are the exercises which comes in the later stages of the COVID-19 cases। जो later stages हैं, जो ठीक हो गए, अपने घर में आ गए या फिर हॉस्पिटल में भी हैं, लेकिन वो ठीक हो चुके हैं, उनको हम एक्सरसाइज ट्रेनिंग देंगे। एक्सरसाइज ट्रेनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ pulmonary rehabilitation. Exercise training is based on general principles of the exercise physiology, frequency, intensity and duration type। ये सब आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी एक्सरसाइज की पेशेंट को कब कराना है। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बोलना चाहता हूँ कि बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग, the assessment of patient is very important. We should go for the proper assessment of the patient, proper the muscle power of the patient हमें चेक करना चाहिए। We have to check the MMT of the muscle power. According to that, we have to plan the exercise for the particular individual। ये मैं देखता हूँ, बहुत ढेर सारे वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं कि एक ही कॉमन एक्सरसाइज हम सारे पेशेंट को करा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 4 से 5 पेशेंट हैं, सब कॉमन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अच्छी बात है, कॉमन एक्सरसाइजेस कराइए, बट सारे पेशेंट का मसल पावर एक जैसा नहीं हो सकता, सबका एंड्योरेंस एक जैसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर पेशेंट का आपको प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू प्लान द प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए वी हैव टू प्लान द एक्सरसाइज प्रोग्राम। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी रिकमेंडेड द मोस्ट फॉर मोस्ट अडल्ट्स इन द अपरेंटली पॉपुलेशन 3 to 5 days पर वीक में हम एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। ड्यूरेशन, द कंडीशनिंग पीरियड फॉर इंड्योरेंस ट्रेनिंग कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 minutes लॉन्गर डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल कैपेसिटी। यस, यही बात मैं आपको बार बार कह रहा था, इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे सारी चीजें डिपेंड करती है कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो कितनी एक्सरसाइज कब और कैसे कर सकता है, उसके हिसाब से हमें एक्सरसाइजेस करानी चाहिए। अपर एक्सट्रीमिटी ट्रेनिंग पहले भी मैंने बात करी, इसमें ये सारी एक्सरसाइज हम करा सकते हैं। आर्म एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, आर्म बाइसिकल एर्गोमीटर, ये आर्म्स आर सपोर्टेड ऑन द पेडल्स, ये है, इस तरीके से आप देखिए इसमें कराते हैं एक्सरसाइजेस। ग्रेविटी रजिस्टिव एक्सरसाइजेस, ये भी जो मैंने आपको बोला कि पेशेंट के जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसके हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। अगर वो रजिस्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो हमें रजिस्टिव एक्सरसाइजेस के लिए जाना चाहिए, उनके मसल पावर को देखते हुए। ठीक है, lower extremity exercises, we can ask the patient to go for the walking। Walking training may be carried out using a treadmill or free style pose, जैसे हम फ्री स्टाइल वॉकिंग करते हैं वो पेशेंट को कराना चाहिए। साइकिल एर्गोनोमीटर भी हम यूज कर सकते हैं। और ये स्लाइड के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी हम एक्सरसाइज कराएंगे बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज ट्रेनिंग फॉर द पेशेंट, इट इज मैंडेटरी टू मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का प्रॉपर बीपी चेक करिए, उसका हार्ट रेट देखिए, उसका फीवर तो नहीं है, फीवर का मॉनिटरिंग करिए, उसको कोई ब्रीथिंग की ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये हमको देखना चाहिए। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑल्सो इफ द पेशेंट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर द एक्सरसाइजेज और ही इज हैविंग डिस्निया एंड एक्सर्शन देने पे उसको डिस्निया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, SpO2 उसका फॉल कर रहा है, इमीडिएटली स्टॉप द एक्सरसाइज ट्रेनिंग, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ऊपर डालिए। और पेशेंट अगर कंफर्टेबल है देन एंड ओनली गो फॉर द प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज ट्रेनिंग, तभी हमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। वेंटिलेटरी मसल ट्रेनिंग, ये एक नई चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। इंस्पिरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, इट इज फोकस्ड ऑन द बिल्डिंग स्ट्रेंथ इन द रेस्पिरेटरी मसल्स बाय इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू इंस्पायर थ्रू स्मॉल ऑरिफिकेस। ये हमारे स्मॉल होते हैं और इनसे हम वेंटिलेटरी मसल्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एडवांस चीजें हैं। इंस्पिरेटरी थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग ये बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट हैं, चाहे फिजियोथेरेपी में मास्टर्स हैं, वो लोग यूज करते हैं, आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं ये चीजें कंप्लीट कर दे रहा हूँ। द पेशेंट अटेम्प्ट टू इंस्पायर थ्रू ए सील्ड वाल्व व्हिच हैज एन एडजस्टेबल ब्रेकिंग प्रेशर, इस तरीके से प्रेशर होता है। जस्ट ये आपके एक नॉलेज के लिए मैंने ये स्लाइड डाल दी कि आपको इसकी जानकारी अच्छी रहे। Placing एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक,
इसमें हम क्या करते हैं, मेथड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, पेशेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कोऑर्डिनेट ब्रीदिंग विद एक्टिविटीज। पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके साथ में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए, ये एक हमें ट्रेनिंग देना है पेशेंट को। फॉर एग्जांपल, पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू एक्सहेल ड्यूरिंग द स्ट्रेनस पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एक्सहेलेशन के लिए बोलेंगे पेशेंट को कि आप एक्सहेल करिए, एंड इज रिमाइंडेड नॉट टू होल्ड द ब्रीथ व्हेन एक्सर्टिंग। ब्रीदिंग को रोकना नहीं है जब भी आप कोई काम करेंगे। तो ये एक हमें ट्रेनिंग देनी है पेशेंट को। एजुकेशन की जहां तक बात आती है कि पेशेंट को हम क्या एजुकेट करेंगे, पेशेंट को वी विल एजुकेट टू स्टॉप द स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकने के लिए बोलेंगे। प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, बिकॉज मेडिकेशन प्लेज ए बिग रोल इन कोविड-19 पेशेंट। पेशेंट को बोलना है कि आपको हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मेडिकेशन को छोड़ दीजिए, आपको एक्सरसाइजेस करनी है। साथ ही साथ मेडिकेशन जो आपके प्रिस्क्राइब है बाय द डॉक्टर, बाय द फिजिशियन, यू हैव टू कंटिन्यू दैट मेडिसिन। रिड्यूस एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अपनी डिप्रेशन को कम करिए। इंप्रूव कॉन्फिडेंस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल को जितना आप एक्टिव रखेंगे उतना ही अच्छा आप कोविड-19 से रिकवर करके आप निकल पाएंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इज अ सेट ऑफ टूल्स एंड डिसिप्लिन्स दैट अटेंड टू द मल्टीपल नीड्स ऑफ द कोविड पेशेंट। डिस्निया रिडक्शन हम करते हैं बाय चेस्ट फिजियोथेरेपी से। डिप्रेशन एंड एंजाइटी रिडक्शन, हम वी कैन गो फॉर द डिप्रेशन एंड एंजाइटी रिडक्शन बाय यूज ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी। इंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट हम करते हैं। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारे चेस्ट फिजियोथेरेपी हम कर रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट को, इनसे कोविड-19 में ही नहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करते हैं। बिकम फ्री फ्रॉम द नेसेसिटी टू द कंस्टेंटली असेस द हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी हम बहुत अच्छा इसका रोल है चेस्ट फिजियोथेरेपी का। और ये हमारी स्लाइड खत्म हो गई यहाँ पे। दीज आर द रेफरेंसेस जहाँ से मैंने अपने रेफरेंसेस लिए, और मैं आपको अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रद्योत सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for the informative session. Definitely, it will help lots of physios and other patients also to recover from the from a severe disease nowadays. So, thank you so much for the informative session, and thank you everyone for joining us. Good night, sir. Thank you, sir.